Welcome my dear students in my online lecture. Today I am going to explain you poem A Thing of Beauty by John Keats. This is a very beautiful poem. I am going to explain you. First of all, I am talking about John Keats. John Keats, he was born in London in 1795. He was a British romantic poet, worshipper of nature, lover of nature, and the nature was a treasure for him. His parents died when he was only 15. He was trained to be a surgeon, but he was interested in poetry. His interest was in literature, so he decided to devote himself wholly to poetry. A Thing of Beauty is an excerpt from his longer poem Endymion. Students, see, this is very important part. You have to see the introduction about the poet, and in second last part you will find Endymion जो है वो एक उसका कलेक्शन था. दैट वॉज लॉन्गर कलेक्शन ऑफ हिज पोइम. उसका एक पार्ट है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज़ इन योर सिलेबस. दैट इज़ सिंपल वेरी शॉर्ट पार्ट जिसको हम एक्सर्प्ट कहते हैं. EXCERPT, जिसको हम पद्यांश कहेंगे. हिंदी में पद्यांश, अगर प्रोज है तो गद्यांश. सो यू कैन फाइंड इन इंट्रोडक्शन दिस इज गिवन excerpt from his poem Endymion. Endymion, a poetic romance poem, is based on a Greek legend. ये एक लेजेंड के आधारित है, ग्रीक लेजेंड, जिसमें बताया था कि इन विच एंडाइमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड. एंडाइमियन कौन था? एक शेपर्ड था जो बहुत खूबसूरत था, हैंडसम. ही वॉज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल इज़ गिवन हेयर बिकॉज पोइट्स आर फ्रीलांसर्स. दे कैन यूज एनी वर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस themselves. And poet who lived on Mount Latmus had a vision of Cynthia. Cynthia, she was moon goddess. The enrichment, the enchanted youth resolved to seek her. The shepherd Endymion, he was in search of beauty. He was in search of his lover Cynthia, who was moon goddess. And in this way he wandered place to place, forest, mountains, different place, through the forest and down under the sea. And in this way he saw beauty in nature, and he was very much impressed, enchanted. He found the sun, the moon, trees, old and young trees, musk roses, beautiful daffodils, all objects of beauty. In addition to these objects of nature, man also produces objects of beauty. Art, poetry, stories, mythology are all sources of eternal joy for us. इंट्रोडक्शन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस इज़ कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स. ये एंडाइमियन का एक पार्ट है. Endymion, it is beautiful collection of the poems of John Keats. Endymion एक ये ग्रीक लेजेंड है कि एंडाइमियन एक बहुत खूबसूरत शेपर्ड था. Once he fell in love to Cynthia. Cynthia was moon goddess and he was in search of her. जब वो उसकी तलाश में गया तो फॉरेस्ट, माउंटेन्स और बहुत प्लेसेस में भटकता रहा. ही वंडर्ड. उसको जो है बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स मिले और
वही उसके लिए एक मोटिवेशन था। ही फाउंड द ट्रेजर इन नेचर. नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स. And after that he composed this poem, A Thing of Beauty. I hope you can understand well. Now I am telling you the central theme of the poem, जिसको हम सार कहते हैं. अब मैं पूरी पोइम का आपको सार बता रही हूँ. A thing of beauty is constant source of joy. कोई भी खूबसूरत ऑब्जेक्ट है वो एक जॉय, हैप्पीनेस का एक सोर्स है. इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. नेचुरल ब्यूटी सुपर्ब है, अनसरपास्ड है, उसका कोई मैच नहीं है. इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज ऑन इंक्रीज. ये हमेशा बढ़ती है, कभी ये डी वैल्यू नहीं होती, कभी ये ज़ीरो नहीं होती. इट नेवर फेड्स. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. नथिंगनेस मीन्स ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होती. इट प्रोवाइड्स अस प्लेजेंट शेल्टर. ये हमको एक प्लेजेंट शेल्टर देती है. क्वाइट बाउर मीन्स ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज विच गिव अस शेड. A quiet bower for us, it gives us peace, sleep full of sweet dreams. तो ट्रीज से हमें क्या मिलता है? What do we get? Scorching heat, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. So passengers, travelers, they used to get shade. ये एक cozy place है. Under the branches of the trees they get comfort, peace and sleep full of sweet dreams. We are bound to beauties of the nature. We suffer from malice and disappointment. हम ह्यूमन बींग्स, हम लोगों की कुछ वीकनेस भी हैं, जैसे इल विल, यानी हम राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, या हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते. डिसअपॉइंटमेंट है, होपलेसनेस है. वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज़. हम इंसान होते हुए भी हम लोगों में अच्छी क्वालिटीज़ यानी इंसानियत की कमी है, नोबल नेचर्स की कमी है. वी हैव सम सैड डेज ऑल्सो. हमारे सारे दिन एक से नहीं होते. समटाइम्स वी यूज टू एन्जॉय हैप्पी डेज and sometimes we have sad and gloomy days, good and bad days both. So all these things make our life gloomy. We also develop unhealthy and evil ways that cause us suffering and pain. और हम गलत तरीके अपनाते हैं अपने को खुश रखने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, ज़्यादा अर्निंग कमाने के लिए. We used to develop unhealthy and evil ways that causes suffering and pain. Things of beauty remove the curtain of darkness. खूबसूरत चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है नेचर में, वो हमारी स्पिरिट यानी हमारी अंतर आत्मा में पड़े हुए दुख के आवरण को दूर कर देता है. डार्कनेस एंड ग्लूम फ्रॉम आवर स्पिरिट. ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर बोन फॉर ह्यूमैनिटी. सारी खूबसूरत चीज़ें हमारे लिए वरदान हैं. बोन फॉर ह्यूमैनिटी. द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, दे आर सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस. कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, वन एंड ओनली वन, जैसे द सन, द मून, द अर्थ. जो ऑब्जेक्ट्स ओनली वन हैं, वन एंड ओनली वन, ओके, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. सो वी हैव ओनली वन सन, द मून, द अर्थ, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस. दे प्रोवाइड शेडी शेल्टर विच इज़ बोन फॉर सिंपल शेप. आई विल एक्सप्लेन यू इन द एंड कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर शीप का ही एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, किसी और एनिमल को क्यों नहीं लिया गया. डैफोडिल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं.
are blooming among the green surroundings. Small streams with transparent water. It means दैट स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी नदियाँ हैं, वाटरफॉल्स हैं जो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट प्रदान करते हैं अगेंस्ट द स्कॉर्चिंग हीट, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हॉट सीजन. bushes growing in middle of the forest, they have been made more beautiful and grand by a sprinkling of blooming musk roses. So these objects are treasure in nature. These beauties of nature are lovelier than all lovely tales that we have heard or read. Nature is an endless fountain. It pours into our hearts an immortal drink from the heavens spring. कहीं पर शूटिंग होती है तो लोग जो हैं ब्यूटीफुल सीनरीज जो हैं सर्च करते हैं जहाँ पे फ्लावर्स हों और नेचुरल ब्यूटी हो. एंड वी पीपल, वी आर क्रेजी टू टेक फोटोग्राफ्स, वी यूज़ टू क्लिक फोटोग्राफ्स, जो एक मोमेंट है जो हमारे लिए एक यादगार बन जाता है. और हमें जो है वहाँ पर क्या मिलता है? पीस ऑफ माइंड. So that is the thing. Now I am explaining through stanzas. See the first stanza, पेज नंबर 89. आप लोग अपनी बुक को भी ओपन करें. एंड इन दिस PDF lines are given. A thing of beauty is a joy forever. This is the first line. A thing of beauty is a joy forever. So it means a beautiful object is always the source of joy and happiness. What is the name of the poem? A Thing of Beauty. What is the name of the poet? John Keats, right? And a thing of beauty is a joy forever. First line, opening line. This is very famous, very popular line. So it means any object in nature is always the source of joy and happiness. कोई भी खूबसूरत चीज़ है वो जॉय और हैप्पीनेस का एक सोर्स है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. उसकी लवलीनेस मीन्स ब्यूटी, वो दिनों दिन बढ़ती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. कभी वो ज़ीरो नहीं होती. बट विल कीप ए बाउर. बाउर मीन्स ब्रांच ऑफ द ट्री. कुंज भी कह सकते हैं हम. ब्रांच ऑफ द ट्री, शेडी लीव्स, जहाँ पर हमको छायादार वृक्ष और जो ब्रांच ऑफ द ट्री है विच गिव्स अस शेल्टर. बाउर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप. इमेजिन करिए जो ट्रैवलर्स बहुत थके हुए हैं, दे आर वेरी मच टायर्ड, हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, और बहुत हॉट सीजन, स्कॉर्चिंग हीट, बहुत परेशान हैं. अचानक से उनको कोई शेडेड ट्री मिल जाता है. सो दे फील कंफर्ट. दिस इज़ कोजी प्लेस. थके हुए हैं तो वहाँ पर उनको अच्छी सी नींद भी आ जाएगी बिकॉज ट्रीज़ provide us oxygen. They used to get oxygen rich breathing, full of sweet dreams. नींद आएगी तो बहुत अच्छे से सपने भी आएंगे. And sound health, quiet breathing. It means effortless breathing. हॉस्पिटल्स में लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगा के आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन दिया जाता है, दोज हू सफ़र ब्रीदिंग प्रॉब्लम. लेकिन जो ट्रीज हैं, ट्रीज आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. सो दे यूज़ टू गेट एफर्टलेस ब्रीदिंग. उसमें उनको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टेंजा. स्टेंजा इज गिवन. A thing of beauty is joy forever. So meaning is very simple. A thing of beauty is always the source of joy and happiness because it gives us joy which would last with us forever and never end. ये कभी भी एंड नहीं होता.
और जो हमें जॉय मिलता है, जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो एटर्नल है, दैट इज़ एटर्नल. सो ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव ए हैप्पी लाइफ. ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्स ऑफ एटर्नल जॉय which provide peaceful sleep, mental peace, mental satisfaction, uplift our gloomy soul, provide hope, sound health, happiness, contentment. Contentment means satisfaction and comfort. These provide experience of divine feeling. Now I am going to continue. See the next para. Therefore, on every morrow, morrow means next morning, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसीलिए हम हर दूसरी सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, रेथिंग मीन्स वीविंग, गूँथ रहे हैं, फ्लावरी बैंड फूलों की मालाएं, टू वाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी से अपने को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए. फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड मीन्स बैंड, फूलों का एक बैंड, टू बाइंड अस टू द अर्थ. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, होपलेसनेस के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स लैक. हम लोग मैन इंसान है लेकिन इंसानियत की कमी है. डर्थ मीन्स लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़. इनह्यूमन, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, हम लोगों में नोबल नेचर्स की कमी है. वी फेस ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स सोरोफुल डेज, सैड, डिसअपॉइंटमेंट, ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज. हम गलत तरीके अपनाते हैं, evil ways, in order to keep us happy, made for our searching years. In spite of all, some shape of beauty moves in away the pall from our dark spirit. So poet says, if we find beauty in any form, it removes the covering of darkness from our spirit. Such the moon, the sun, trees old and young, sprouting a shady bone. ये आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन. इमेजिन करिए अगर सन अपेयर ना हो विंटर्स में, क्या होता है. वी यूज टू वेट द थिंग्स विच वी मिस. सो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट elements for us, such the sun, the moon, trees old and young, चाहे ट्रीज पुराने हैं या नए हैं. स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, स्प्राउटिंग स्प्रेडिंग, शेडी छायादार, बोन मीन्स वरदान. ये हमारे लिए वरदान है. सो पोइट हैज़ गिवन लिस्ट ऑफ those objects which provide us happiness. Various objects of nature like the sun, the moon, old and young trees in forest, daffodils, clear water, streams. These are some sources in nature which provide us joy. Old and young trees sprout to make a green covering, proves a blessings for us. ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, सी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. यू हैव टू गो थ्रू एट पेज नंबर 90. फर्स्ट लाइन देखिए. फॉर सिंपल शीप सच आर डैफोडिल्स. पोइट ने यहाँ पे शीप का डिस्क्रिप्शन क्यों दिया. वंस इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, बट स्टूडेंट्स दे कुड नॉट गिव रिस्पॉन्स एज दे मस्ट गिव. शीप जो है एक इनोसेंट एनिमल है. शीप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती. इट डजंट हार्म एनीवन. बल्कि हम ह्यूमन बीइंग्स शीप को मार के
उससे बूल निकालते हैं और उसकी स्किन की से उसको सेल करते हैं, उसको किल करते हैं और उसकी बूल को यूटिलाइज़ करते हैं। वी गेट बूल आफ्टर किलिंग। बट शीप इज़ इनोसेंट एनिमल, इट नेवर हार्म एनीवन। अगर आप लोगों ने जीसस क्राइस्ट की कभी फ़ोटो देखी हो और नहीं देखी है तो आप देखिए। जीसस क्राइस्ट ही वॉज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ शीप। और एक चीज़ और याद रखिए कि शीप का प्लूरल कभी शीप्स नहीं होता, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही शीप रहेगी। तो आप जीसस क्राइस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पिक्चर है दैट ही वॉज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ शीप, चारों तरफ से शीप से घिरे हुए हैं। अगर आप देखें लॉर्ड कृष्णा ही वॉज एसोसिएटेड विथ काउस, लॉर्ड शिवा एसोसिएटेड विद स्नेक्स। तो ये एनिमल्स जो हैं वो हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के जो हैं वो उनसे कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे उनका लिंक है। शीप का जो लिंक है एसोसिएटेड विद जीसस क्राइस्ट, तो हम इसको डिवाइन मानते हैं। शीप दैट इट इज़ डिवाइन, डिवाइन मीन्स ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, गॉड गिफ्टेड। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक इनोसेंट शीप जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और उसको जो है पेड़ की छाया के नीचे शेल्टर मिल रहा है। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, ग्रीन वर्ल्ड मीन्स फॉरेस्ट, they used to bloom in the mid-forest. Old and young trees sprout to make green covering, proves blessings for simple sheep as it serves them as a shelter. Daffodils bloom among the green surroundings. Rills or small streams of clear water make a cooling shelter for themselves against the hot season. हॉट सीजन, स्कॉर्चिंग हीट में जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनसे हमें हवा मिलती है, छाया मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंफर्ट मिलता है। वी यूज टू सर्च दैम। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट स्टेंजा, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, रिच विद स्प्रिंकलिंग ए फेयर मस्क रोज ब्लूम। जंगलों में फूल खिले हैं, जंगलों में पेड़ हैं, डेंस फॉरेस्ट घने हैं। हम लोग वहाँ पानी डालने नहीं जाते हैं, लेकिन वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। ज़रा इमेजिन करिए कि मिड फॉरेस्ट में रोज़ ब्लूम हो रहे हैं, मस्क रोज़। उनको कलर किसने दिया है? ब्यूटीफुल कलर्स। दे आर द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, वो ईश्वर की संरचना है, ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट। दे यूज टू स्प्रिंकल द स्वीट फ्रेगरेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ खुशबू बिखेरते हैं, फ्रेगरेंस। और इन खूबसूरत चीज़ों को देखकर, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखकर कुछ पल के लिए हम अपने दुख को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को हम भूल जाते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, yes, in shape of all, some shape of beauty moves away. Moves away means removes the pall means covering from our dark spirit. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady bone. These are beautiful objects. For simple sheep, such are daffodils, with the green world they live. Green world, I have already told you, that is forest. So they provide happiness. See the last stanza at page number 90.
such too is grandeur of domes we have imagined for the mighty dead. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ध्यान से देखें. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. In the last stanza, poet says, see the lines, you have to pay attention. The mighty dead, mighty means powerful. Mighty dead, dead यहाँ पर है ancestors, were very powerful and dominating persons during their own times. Their achievements made them mighty and great. Grandeur is associated with them because our past is full of stories of their glory. They will always be remembered for their achievement. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लास्ट वाला स्टेंजा और इम्पॉर्टेंट भी है, आप ध्यान से सुनिए और समझिए. जो हमारे पूर्वज थे जिनको हमने देखा या नहीं देखा, बहुत सारे हमारे एंसेस्टर्स हैं जिनकी हमने शौर्य गाथाएँ बचपन में सुनी या पढ़ी और उनको देखकर हम बहुत प्रभावित हुए. हमने ये इमेजिन किया कि वो लोग कितने पावरफुल थे. सो द माइटी डेड, माइटी मीन्स पावरफुल, डेड एंसेस्टर्स, they were very powerful and dominating persons during their own time. उनकी अचीवमेंट्स, उनकी ग्लोरी, उनकी जो शौर्य गाथाएँ हैं उनके बारे में हमने बचपन में कहानियाँ पढ़ी या हमने मूवीज़ देखी, उनके बेस पर सीरियल्स बने. अशोका द ग्रेट है, ठीक है, शिवाजी का है, महाराणा प्रताप का है, लक्ष्मीबाई है, बहुत सारे हमारे माइटी डेड एंसेस्टर्स जिनको हमने नहीं देखा लेकिन हम सिर्फ इमेजिन करते हैं. सो फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ देयर ग्लोरी, दे विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर देयर अचीवमेंट. नाउ यू विल think that why the poet has given example of these people. Grandeur of the domes means, यहाँ पे जो लाइन आई है फ्रेज को ध्यान से देखें. वीडियोस के साथ साथ आप लोग अपनी बुक भी ओपन करें अगर पीडीएफ में क्लियर नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड. सो द पोइट सेज ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स. सी द लाइन्स, ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स. ग्रैंड्योर होता है मैग्निफिशेंट, जिसको हम हिंदी में शानो शौकत भी कहते हैं. ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स मीन्स द मैग्निफिशेंस दैट वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड forefathers on the doom's day. Next is given the thing of beauty mentioned in these lines. It means lovely stories, all those stories, all those tales celebrating the glory of our powerful ancestors, which we have read or heard about. We used to imagine they are beautiful tales, they are beautiful stories full of their bravery and glory. The poet uses the images. See the next line. Now poet says, these are loveliest tales. ये उनकी जो शौर्य गाथाएँ हैं बहुत खूबसूरत हैं, जिनको हमने इमेजिन किया, पढ़ा, सुना और read. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. Poet uses the image as endless fountain. Endless क्या है? अनंत. Fountain है फव्वारा. Of immortal drink. Immortal अमृत जो कभी ख़त्म नहीं होता. Immortal drink. Coming down to us from heaven. जो कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से सीधे हमारे हृदय को स्पर्श कर रहा है. According to the poet,
nature and other beautiful things around us like a gift from God which gives us infinite delight and joy. पोइट ने कहा कि जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं पृथ्वी पर वो हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है, बिकॉज दे आर क्रिएशन ऑफ गॉड. उनको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है. दे आर लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड विच गिव अस इनफाइनिट डिलाइट एंड जॉय, जो हमें बहुत अनंत खुशी प्रदान करते हैं. So John Keats considered nature as an endless fountain of immortal drink. जॉन कीट्स इस नेचर को एक अनंत फव्वारा मानता है. इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत रूपी ड्रिंक का एक अनंत फव्वारा है. ही कॉल्ड इट इमॉर्टल बिकॉज ए मैन कैन गेट नेस्ट, रिलीफ, पावर in the company of nature, and an endless beauty is hidden in her species. The message of this poem, A Thing of Beauty, is that a thing of beauty gives us endless joy. It can never vanish, disappear, or diminish. These things of beauty take away our stress and tension. The memory of such a thing is a source of everlasting happiness. In order to understand the poetry, in order to understand the literature, you must develop the understanding skill, and you must have vision and the feelings like those of poets. लिटरेचर बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें तब समझ आती है अगर हम उसको एक पोइट के नज़रिए से देखें और उसको अपने में उतारने की कोशिश करें. इफ़ वी डेवलप सच फीलिंग्स, अगर हम उन फीलिंग्स को डेवलप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी. दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखिए ना, हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करता. Lot of times I saw the videos or on status, students or teenagers, children, young people, old people, they like to enjoy the beauty. आप लोगों को भी अच्छा लगता है अगर कहीं चूका बीच गए या कहीं पर फॉरेस्ट एरिया में गए, ऐसे प्लेस में गए जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं. मोमेंट, वो क्षण जो है वो एवर लास्टिंग होता है, वो हमारे लिए एक यादगार मेमोरी होता है. जो मोमेंट और मूवमेंट दोनों में अंतर होता है. मूवमेंट जो है वो डायनेमिक है, जो एक स्टेबल नहीं होता, और दूसरी तरफ जो क्षण होता है, इवेंट्स, जो मेमोरीज हैं, वो हमारे लिए वो क्षण जो है एवर लास्टिंग होता है, एक खूबसूरत यादगार होती है. तो यहाँ पर ये जॉन कीट्स ने अपनी पोइम एंडाइमियन लिखी है, उसका एक पार्ट बताया. बिकॉज ही वॉज इन सर्च ऑफ हिज लवर सिंथिया, मून गॉडेस. वो मून गॉडेस की तलाश में थे, ब्यूटी की तलाश में, अपने लव की तलाश में. लेकिन उनको जो एक्सपीरियंस मिला और वॉट एवर द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ही सॉ ऑन द वे, उसके लिए वो जंगल भटके, माउंटेन्स में गए, वैलीज़ में गए, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स देखे उन्होंने, कैस्केड्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे. रास्ते में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिले, उन चीज़ों से इंस्पायर होकर उन्होंने इस पोइम को लिखा. सो नाउ यू हैव टू सी द टेक्सुअल क्वेश्चंस. पेज नंबर 90 I am going to discuss you. It will be quite easy for you. Think it out. Pay attention. First question is given
List the things of beauty mentioned in the poem. फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पोइट ने कौन से खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स की बात की है. सो आई एम गोइंग टू मेंशन द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स. Poet refers to objects of nature as well as creation of literary work as things. Objects of nature mentioned in the poem are the sun, the moon, trees, old and young, clear streams. Streams होते हैं झरने, small river. Musk rose, rose it means musk rose, spreading fragrance, sweet fragrance all around. Daffodil flowers, greenery, surroundings. These are beautiful objects in nature. Second question, list the things that cause suffering and pain. इसमें कहा है कि पोइट ने वो कौन सी चीज़ें बताई हैं जो हमें दुख दर्द प्रदान करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, कोई चीज़ हमारे पास आते आते छूट जाती है. ठीक है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूटी एग्ज़ाम दिया और आप उसको सबमिट नहीं कर पाए, या कहीं पर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो वो हमें जो है डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, डिससेटिस्फेक्शन प्रदान करते हैं. दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरो एंड सफरिंग. हमारे सारे दिन एक से नहीं होते. वी यूज टू एन्जॉय बोथ. वी शुड एन्जॉय बोथ हैप्पीनेस एज वेल एज सॉरो एंड सफरिंग. हैप्पीनेस प्रोवाइड अस डिलाइट, mental satisfaction, and bad days give us experience. They give us a lesson. जो बुरे दिन हैं वो हमें एक एक्सपीरियंस देते हैं. as we are facing today, so we must enjoy both days equally. अब इसमें इन्होंने कहा है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, जो हमें दुख दर्द प्रदान करते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन. थिंग्स विच कॉज पेन एंड सफरिंग आर सैडनेस, कभी हम उदास हैं. होपलेसनेस, कहीं पर होप नहीं है. लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, हम इंसान हैं लेकिन इंसानियत की कमी है. यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डर्थ. डर्थ मीन्स लैक ऑफ नोबल नेचर, नोबल क्वालिटीज़. अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, बिग स्टाइल ऑफ लिविंग, गलत तरीके अपने को खुश रखने के लिए या शॉर्टकट वे हम अपनाते हैं. कहीं से रातों रात हम अमीर बन जाएं, कहीं से हमें इजी मनी प्राप्त हो जाए. सो वी यूज़ टू अडॉप्ट बिग or unhealthy ways to keep us happy. So these are some things, objects that cause suffering and pain. See the next question. What does the line "Therefore are we wrathing a flowery band"? See the lines. Third question is given. Therefore are we wrathing flowery band us to earth. हम फूलों की मालाएं गूंथ रहे हैं अपने को इस पृथ्वी पर कनेक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कनेक्ट आवर सेल्व्स. आप देखिए ना, बहुत से लोग जो हैं माउंटेन्स में चले जाते हैं, हिली एरियाज़ में चले जाते हैं सुकून पाने के लिए, थोड़ा चेंज चाहते हैं. दे वांट सम चेंज. सो दैट इज़ इन ऑर्डर टू just get rid of tension, stress, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए they want some change. So here poet says, John Keats says, pain and sufferings are part of life. पेन, सफरिंग वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है. which spread the pall of despondence over our
dark spirit, still we can find hope. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है. द होप मोटिवेशन कम्स फ्रॉम नेचर एंड इट रिमूव्स दिस कवरिंग एट डिस्पोंडेंस. नेक्स्ट, fifth question, why is grandeur associated with the mighty dead? I have already explained you, and this is little bit difficult. Mighty dead, mighty means powerful, dead means dominating person during their own times. तो ये हमारी एंसेस्टर्स की बात हो रही है, हमारे वो पूर्वज जिनको हमने नहीं देखा लेकिन जो बहुत बहादुर थे, ब्रेव थे, करेजियस थे. उनकी शौर्य गाथाएँ हैं, फुल ऑफ ग्लोरी. अचीवमेंट्स मेड देम माइटी, उनकी अचीवमेंट्स ने उनको पावरफुल बनाया, ग्रेट बनाया, जैसे अशोका द ग्रेट. ग्रैंड्योर इज एसोसिएटेड विद देम बिकॉज आवर पास्ट इज़ फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ दिस ग्लोरी. They will always be remembered for their achievement. Sixth question is given, do we experience things of beauty only for short moments or do they make lasting impression on us? अभी मैंने बताया ना, मूवमेंट और मूवमेंट जो है वो गतिमान है, ठीक है, ऑन मूव. और मोमेंट जो है वो एक क्षण है, एक इवेंट है, बट इट हैज़ लास्टिंग इम्प्रेशन. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इट क्रिएट्स लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड एंड सोल. ये हमारे दिलो दिमाग पर, हमारी आत्मा पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के जाता है. And last is, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? So simple message is given here in the end. You have to write that John Keats considered nature as an endless fountain of immortal drink. Thing of beauty gives us endless joy. It can never vanish or nor diminish. These things of beauty take away our stress, tension, and memory of such a thing is a source of everlasting happiness. A thing of beauty gives us permanent happiness. If we look at objects of beauty, we feel happy. Lasting impression that such objects leave on our mind continues to give us pleasure even when they are no longer in our sight. प्रेजेंट टाइम, आज जो हमारा टाइम है, ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग हट के जा रही हूँ, बट दिस इज़ रिलेटेड विद द सेम टॉपिक. प्रेजेंट टाइम्स, COVID-19, एंड दिस इज़ very challenging period for each and everyone, whether we teachers or you students or businessmen or any person. It has become challenge, pandemic. So present times, acute stress and violence. देखिए आज का जो समय है, प्रेजेंट टाइम, फियर है, वॉर है, वरी है. फियर किस चीज़ का है? कोरोना का है, ठीक है, फियर. वॉर दूसरी तरफ वॉर का है, राइट. और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आर्थिक प्रॉब्लम भी हैं. उसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स वी आर फेसिंग एक्यूट स्ट्रेस, वायलेंस. लेकिन मेन चीज़ क्या है, हम उसको कैसे ओवरकम करें? हाउ टू ओवरकम? ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी अटेन इवन ग्रेटर सिग्निफिकेंस when our mind is anxious, troubled. Very sight of beautiful things often comes as a relief, provides us comfort and happiness for the moment. अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको ब्यूटीफुल साइट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत. आप देखिए बरेली से जब हम पीलीभीत आते हैं तो रास्ते में
इतना खूबसूरत साइट लगता है, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट। मेनका गांधी ने एक बार कमेंट किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे खूबसूरत दृश्य है, ब्यूटीफुल सीनरी, ये जो हमारे पीलीभीत से बरेली आने का जो रास्ता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से पेड़ों की शाखाएं आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे कि एक उसका गेट बन रहा है। एक गार्डन्स हैं, फूलों की मालाएं, फ्लावर्स तो सीजनल होते हैं, लेकिन जो ट्रीज़ हैं, चाहे वो ओल्ड ट्रीज़ हैं या यंग ट्रीज़ हैं, वो हमें एक शेड प्रदान करते हैं। सो वी फील पीस ऑफ माइंड, और तब हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है, पीस ऑफ माइंड महसूस होता है। सो दिस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स इज़ लाइक एप्रिशिएटिंग गॉड हु हैज़ बेस्टोड देम अपॉन मैनकाइंड एज ए गिफ्ट। ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स जो हैं नेचर में, वो ईश्वर का एक वरदान है, ब्लेसिंग्स, ब्लेस। दे प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, solace. Proximity to beautiful things brings us closer to the Creator. ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हमें इसके क्रिएटर के नज़दीक लाती है। In whom lies the ultimate power to grant us. Therefore it is sure to bring everlasting happiness at all times. जिससे हमें एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है। पोइम को समझने के लिए आपको फीलिंग्स डेवलप करनी पड़ेगी, और जब उस चीज़ को आप फील करोगे, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड देन यू विल क्रिएट इंटरेस्ट। हम वो काम अच्छी तरह से समझ सक जाते हैं या करना चाहते हैं जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट तो डेवलप करना पड़ता है। एंड देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन का जो मेन पर्पस है, उसके लिए हमें इंटरेस्ट डेवलप करना, चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सेंड यू। Okay, keep watching and give me feedback. If any confusion, you can ask me. You can clear your doubts and confusion freely. I will always available for you. Thank you. Have a fruitful day.